केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला में सफलता की राह पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। नॉर्थ ईस्ट लाइव से बातचीत में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नायपुंग कोनिया ने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में साफ पानी पहुंचाना है। इस इरादे से वर्ष 2019 के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इस मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि इस मिशन के क्रियान्वयन को देखने के लिए विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कम्युनिटी की 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। बोमडीला में 13,545 परिवार में से 11,376 परिवार तक यह मिशन पहुंच चुका है। वहीं दिरांग में 5,015 में से 4,049 और वेस्ट कामेंग जिले के 284 गांवों को कवर किया गया है। What is the main objective of this mission Jal Jeevan? The main objective of Jal Jeevan Mission is to provide safe and adequate drinking water to all individuals through household tap connections by year 2024 to people residing in rural areas. And basically we design it to provide at least 55 LPCD of water supply to the consumers, and the quality should also be adequately taken care. Since Jal Jeevan mission is to provide safe and adequate water to every rural household, but the water scarcity is now the global problem. So there is the possibilities of water scarcity too in these rural areas also. So what is the future planning of the government to give a good backup to avoid or overcome the water scarcity? Yeah, that's true. This drying up of sources and reduction in the discharge of sources, water sources, is a global phenomena. It's taking place everywhere. And keeping in view the impending danger, while implementing this project in rural areas, we are imparting training to the village water and sanitation committee. We have got BWC in all rural areas. We are training them to protect the source, especially the catchment area, and do certain activities like afforestation, and there are some other measures like construction of catch pit, construction of check dam, artificial lake, and those technical know-hows are being imparted to villagers, and it will be taken up in a proper and very with a concerted effort. How is this project executed, whether this is being executed by the department itself or whether this project has been handed over to any particular third parties like contractors, and how are the stakeholders being selected for this project to avail these benefits? Basically, this is executed through the participation and involvement of stakeholders, the beneficiaries. This project is implemented through a tendering process, wherein basically the beneficiaries, they take part, and those selected contractors, they execute it, and we from department side, we technically supervise them, guide them to implement the project. How would it be ensured that this project would run for a long time? While implementing this project, we initially start with formation of village water and sanitation committee. In my divisional jurisdiction under West Kamen district, we have got 184 villages. In all those 184 villages, we have got BWC. And once this project is completed, the project is handed over to the BWC, and the BWC, it comprises of around 7 to 15 members, and during implementation also they participate here. They also monitor the works that is taking place from this WTP, from where we are standing now, to the household level. If there is any defect, maintenance requirement, that will be taken care of by the BWC. And as a part of this Jal Jeevan mission, we train some unemployed youths. We provide them skilled training to handle machinery work as well as plumbing and electrification. And there are already trained people in the village, and those trained personnel can be
engaged to operate and maintain the intra-village component of this project. इस बीच इस मिशन से लाभान्वित हुए ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का आभार जताया। तो जल जीवन मिशन जो अभी शुरू हुआ है, तो जिसके चलते आप लोगों के घर पर जो पानी, पीने का पानी जो अभी काफ़ी आराम से आ रहा है, तो उससे पहले कैसा था और आप लोग कहाँ से पानी लेते था और उस टाइम में किस किस कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता था, कैसा तकलीफ था आप लोगों का? जल जीवन मिशन से पहले तो पानी का बहुत झंझट होता था। तो बस्ती में कहीं कहीं में तो नल था पहले से, तो वहाँ से बहुत दूर दूर से लेना पड़ता था। अभी ये घर घर नल जो स्कीम आने के बाद हम अपने घर में मिल जाता है, तो बहुत सुविधा होता है। तो पहले आप लोग पानी कहाँ से लेता था और कितना समय लगता था और काम में किस तरह का तकलीफ या रुकावट आता था? काम में तो काफ़ी रुकावट आता है। दिन भर काम करते हैं, शाम सुबह जब पानी ज़रूरत होता है तब भी उसमें भी अलग सा समय निकल के जाना पड़ता है। तो कितना दूर तक चलना पड़ता था आप लोगों को पानी के लिए? दूर तो इस तरफ एक नाला है इसमें 500 मीटर जैसे होगा, एक वहाँ तक जाना पड़ता था। अभी तो फिलहाल आप लोगों के घर में जो पानी का कनेक्शन लग चुका है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी जो हमारे घर ये जल जीवन स्कीम जो हमारे घर घर में नल लगा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा हो गया है, बहुत काम समय बचता है हमारा, काम भी सही टाइम पर सब पूरा हो जाता है घर में। और मैं ये पीएचसी डिपार्टमेंट और ये इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ये थैंक्स देता हूँ कि ये लोग ये सुविधा निकला है हमारे लिए, गांव वालों के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को। तो आप पीएचई डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे थैंक्स करना चाहेंगे? मैं भी बहुत आभारी हूँ पीएचई डिपार्टमेंट और भारत सरकार को कि उन्होंने हमारा घर घर में जल का जो सुविधा दिया है उसके लिए। सबसे पहले मैं जल जीवन मिशन से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ पर 100 घर है। जल जीवन मिशन आने से पहले हमारे 100 घरों पर काफ़ी दिक्कत था पानी का। जल जीवन मिशन जब से हमारे यहाँ पे पहुँचने के बाद अभी पानी का काफ़ी सुविधा है, हर घर पर पानी पहुँच चुका है। तो मैं पीएचई डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे बस्तियों की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पहले हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम था पानी का सर। हफ्ते में 2-3 बार पानी खराब होता था, तो हमको नदी में जाना पड़ता था बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। लेकिन अभी हमारे गांव में 5-6 महीने से पानी इतना अवेलेबल है, 24 आवर्स आता है। हमको गाँव वाले सभी को बहुत सुविधा हो गया है। गाँव वाले सारे बहुत खुश है सर। पानी भी बिल्कुल साफ़ है, हम लोगों ने टेस्ट भी किया था, बिल्कुल अच्छा है सर। और पहले से दिक्कत था, वैसे गाँव वाले सारे बहुत परेशान थे, अभी सारे गाँव वाले खुश हैं। तो मेरे यहाँ पे पहले नल नहीं था, तो ये पास में ही मेरा एक दीदी रहता है, उनका मतलब थोड़ा दूर है यहाँ से, वहाँ से मैं पानी लेता था। बाद में फिर जब नल आया तो मैंने बाथरूम में भी लगाया और किचन में भी लगाया, तो बहुत सुविधा हुआ। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पानी का बगैर कुछ नहीं होता है, सभी पानी से ही होता है। इसलिए अभी मैं बहुत खुश हूँ। आपको ये जल मिशन आने के बाद में मेरा पानी बहुत सुविधा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। पहले तो हम ये 10-12 बार पानी भराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। उसके बाद में हम ये कपड़ा लोग धोने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था ना, बर्तन लोग धोने के लिए। तो इसलिए अभी ये पानी घर में आने के बाद में बहुत अच्छा हो गया। जल जीवन मिशन ये एक अभियान जुड़ा है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और मैं इस वक्त हूँ बिदुम विलेज पर, जो कि पश्चिमी कामेंग जिला यानी कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है। पश्चिमी कामेंग जिला में या जल जीवन मिशन 2 भागों में बटा गया है, एक है बोमडिला और दूसरा है दिरांग, जहाँ पर 80% से ज़्यादा घर आज सेफ ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ा गया है यहाँ पर। और साथ ही जो कि यहाँ के आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हुए ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशंस और जो सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है, उससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर घर एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मुहैया हो। प्रेम छेत्री, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए बिदुम विलेज, बोमडिला से।